تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت تو طواف کر میرا، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اے جنت تو طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار تیری جنت کی تعریفیں بڑی سنی، اے میرے مولا تیری جنت کے چرچے بڑے سنے، اے میرے مولا تیری جنت کی بہت تعریفیں سنی۔ اس میں حوریں ہیں یہ بھی سن لیا، اس میں گلما ہے یہ بھی سن لیا، اس میں پھل فروٹ کے باغات ہیں یہ بھی سن لیا، اس میں دودھ کی نہریں جاری ہیں یہ بھی سن لیا۔ اے میرے مولا جو میں سوچوں وہ سب تیری جنت میں موجود۔ اے میرے پروردگار ہمیں تیری جنت بڑی پسند ہے، دے دے۔ تو مشیت ربانی نے حکم سنا دیا جنت ایسے تھوڑی ملے گی۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے پروردگار نماز پڑھی جنت کے لیے، روزہ رکھا جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، زکات دیا جنت کے لیے۔ اے میرے مولا نماز پڑھی اب تو جنت مل جائے گی، روزہ رکھا اب تو جنت مل جائے گی، حج کیا اب تو جنت مل جائے گی، زکات دیا اب تو جنت مل جائے گی، غریبوں کی مدد کیا اب تو جنت مل جائے گی۔ تو مشیت ربانی نے حکم سنا دیا کہ دے نمازیوں تم نے نماز پڑھی مگر جنت کی کوئی گارنٹی نہیں، تم نے روزہ رکھا مگر کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا کہ نماز پہ جنت کی گارنٹی نہیں، روزے پہ جنت کی گارنٹی نہیں، تو میرے عشق نے جھنجھوڑ کر کے کہا کہ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز تو سنی بھی پڑھتے ہیں، اور نماز آئیے میدان کربلا میں چلیے، نماز حسینی خیمے میں بھی ہو رہی ہے، نماز یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی ہے، قیام یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، قیام حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، رکوع یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، رکوع حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، سجدہ یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، سجدہ حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، قاعدہ یزیدی خیمے میں بھی ہو رہا ہے، قاعدہ حسینی خیمے میں بھی ہو رہا ہے۔ ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی اذان دی جا رہی ہے، ادھر بھی اذان دی جا رہی ہے، ادھر بھی تکبیر پڑھی جا رہی ہے، ادھر بھی تکبیر پڑھی جا رہی ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے آقا امام حسین آپ کو ہاتھ نہ دینا تھا تو نہ دیتے، آپ کو یزید کی بیعت نہ کرنا تھی تو نہ کرتے، لیکن نماز تو ایک جگہ پڑھ لیتے، اذان تو ایک ہو جانے دیتے، تکبیر تو ایک ہو جانے دیتے، نماز تو ایک جگہ پڑھ لیتے، جماعت تو ایک جگہ کر لیتے۔ آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے آقا حسین نمازیوں کی کثرت دیکھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اے میرے آقا حسین آپ کو یزیدی خیمے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو اپنی طرف بلا لیتے، لیکن میرے آقا امام حسین نے عالم تصور میں جواب دے دیا۔ میدان کربلا سے جواب ملتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے مت جا، نمازیوں کی کثرت دیکھ کر کے مت جا۔ میں نے کہا اے میرے آقا حسین میں نمازیوں کی کثرت دیکھ کر کے نہ جاؤں تو کیا دیکھ کر کے جاؤں، نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے نہ جاؤں تو کیا دیکھ کر کے جاؤں۔ تو جواب ملا کربلا کی دھرتی سے کہ نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے مت جا، نمازیوں کی کثرت دیکھ کر کے مت جا، اگر جانا ہے تو امام دیکھ کر کے جا، اگر امام رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو جا، اور اگر امام رسول اللہ کا غدار ہے تو لات مار کے الگ کھڑا ہو جا۔ اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، ارے جنت میرے حضور کے صدقے میں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بول رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اس پھیر میں مت رہنا کہ سجدے میں ملے گی، جنت میرے حضور کے صدقے میں ملے گی۔
तुम ढूंढते हो शर्म व हया की यहाँ दौलत, वो फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी। मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, तो हमें तेरी जन्नत मिलेगी कैसे, हमें तेरी जन्नत कैसे हासिल होगी? तो कुरान करीम ने आगे बढ़कर के जवाब दिया, ये जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, ये जन्नत लेने की आरजू रखने वाले, ये जन्नत लेने की ख्वाहिश रखने वाले, तुझे जन्नत चाहिए। मैंने अर्ज किया हाँ कुरान, मुझे जन्नत चाहिए। जमीन बेचना पड़ेगी तो बेच दूंगा, मकान बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा, खुद को गिरवी रखना पड़ेगा तो रख दूंगा, मुझे जन्नत चाहिए। तो कुरान जवाब देता है, ये जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तू तलवार हाथ में ले ले। मैंने कहा ले लिया। कुरान कहता है मैदान में उतर जा, कहा उतर गया। अब कुरान करीम का जवाब सुनो। कुरान कहता है जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो माल हो तो लुटा के ले ले और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने कहा है कुरान, माल कैसा हो जान कैसी हो? तो जवाब मिलता है कि माल हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलादे अली की तरह, क्योंकि दुनिया के मालदारों में उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं और दुनिया के जानदारों में हुसैन इब्ने अली का कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन उस्मान गनी है, ये कौन इमाम हुसैन है? आज दुनिया के कुछ लोग कहते हैं कि खिलाफत का हकदार अली को होना चाहिए था, उमर फारूक आजम ने इंसाफ नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने इंसाफ नहीं किया, उस्मान गनी ने इंसाफ नहीं किया और खुद खिलाफत को यके बाद दीगरे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, उमर फारूक आजम भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। इमाम हुसैन से उमर फारूक आजम कितनी मोहब्बत करते थे, आप जरा तारीख उठा करके देखिए। उमर फारूक आजम जब इस्लाम लाए थे और जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने थे और जब उमर फारूक आजम कुर्सी पे बैठे और जब आपने हुकूमत की बागडोर को संभाला तो उमर फारूक आजम के दौर में 10 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में 44 मुल्क उमर फारूक आजम ने फतह कर लिए थे। हर तरफ उमर फारूक आजम की शान के झंडे लहरा रहे थे। अंग्रेजों ने हजरत उमर की हिस्ट्री को पढ़ करके कहा था, अगर इस उम्मत में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होती। वो उमर फारूक आजम है। एक लश्कर ईरान की सरजमीन पे भेजते हैं, ये उमर फारूक आजम का लश्कर जो है कामयाब हो जाता है और जंग जीत जाता है। आपका लश्कर फतह नुसरत का झंडा लहरा दिया जाता है ईरान की सरजमीन पर। वहां से गुलामों को पकड़ करके लाया जाता है, माले गनीमत को लूट करके लाया जाता है, वहां से कुछ कनीजों को लेकर के आया जाता है। मदीने शरीफ की सरजमीन पे ला करके माले गनीमत रख दिया गया, मदीने की सरजमीन पे ला करके कनीजों को बिठा दिया गया। उन कनीजों में, उन बांदियों में, उन लड़कियों में एक लड़की ऐसी थी जिसके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं था, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, जिसकी जमाल का कोई जवाब नहीं था, जिसके चेहरे से खूबसूरती के आसार नमूदार हो रहे थे। मदीने का हर इंसान ये चाह रहा था कि इसके साथ में मेरा निकाह हो जाए। उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर हमारे साथ उस लड़की का निकाह कर दिया जाए। उमर फारूक आजम कोई जवाब नहीं देते हैं। किसी ने कहा हुजूर आपके बेटे अब्दुल्ला भी जवान हैं, आप अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह कर दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया मैं उसका निकाह एक ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा जिसके साथ करने पर मुझे पूरी दुनिया याद रखेगी, दुनिया मेरे अदल का नाम लेगी, दुनिया मेरे इंसाफ का नाम लेगी। उस लड़की का नाम कोई और नहीं था बल्कि उस लड़की का नाम शहरबानो था। उमर फारूक आजम ने मेरे आका इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा आका हुसैन, ये कौन इमाम हुसैन है? इमाम हुसैन की और हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला की आपस में अनबन हो गई थी। तब इमाम हुसैन ने जलाल में फरमाया था, अरे तू हमसे बात कर रहा है, तेरा बाप भी हमारा गुलाम है और तू भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम की हुकूमत थी, उमर फारूक आजम कुर्सी पे बैठे हुए थे। बेटा ये सुन करके आंखों में आंसू ले आता है, उमर फारूक आजम के पास में आकर के कहता है आज हुसैन ने मुझसे ऐसी बात कही है
जिसे सुन करके आंखों में आंसू आ गए हैं। उमर फारूक आजम कहते हैं बेटा क्या कहा है? उमर फारूक आजम का बेटा कहता है आज हुसैन ने मेरे लिए कहा है कि तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम कहते हैं क्या सच में बेटा ऐसा ही बोला है हुसैन ने? क्या सच में यही कहा है? कहा हाँ, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए। इमाम हुसैन के पास में उमर फारूक आजम आए, कहा क्या आका हुसैन आपने मेरे बेटे अब्दुल्ला से ये कहा है कि तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है? मेरे आका हुसैन फरमाते हाँ मैंने यही कहा है। जब इतना कहना था उमर फारूक आजम ने एक पर्चा निकालते हैं और कलम दे करके कहते हैं ए मेरे आका हुसैन आप इसको लिख करके दे सकते हैं। बेटा समझ रहा था वालिद सजा देंगे, बेटा समझ रहा था वालिद बेटे इमाम हुसैन से कुछ कहेंगे, लेकिन आका हुसैन की बारगाह में उमर फारूक आजम बड़े अदब से कहते हैं आप इसे लिख करके दे सकते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ लिख करके दे सकता हूँ। इमाम हुसैन ने लिख करके दे दिया तू भी हमारा गुलाम है, तेरा बाप भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम ने पर्चे को अपने साथ में रखा और कहा बेटा हो बेटा अब्दुल्ला आज मुझे मेरे जन्नती होने की सनद मिल गई है, आज मुझे मेरे जन्नती होने का प्रूफ मिल गया है। आज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे साथ इस पर्चे को कब्र में रख देना। ए मेरे लाल ये वो नवासा है, मेरे लाल ये वो बेटा है जिसकी मर्जी को रसूल खुदा नहीं टालते हैं, जिसके फरमान को अल्लाह के रसूल नहीं टालते हैं। ए मेरे बेटा मैंने नबी की ज़बानी सुना है, नबी फरमाते हैं जो ये चाहता है कि नबी उससे राजी हो जाए वो मेरी बेटी फातिमा को राजी कर ले, और जो ये चाहता है कि मेरी बेटी फातिमा राजी हो जाए वो इमाम हुसैन को राजी कर ले। यहीं से पता चल गया कि जो इमाम हुसैन का वफादार है वो फातिमा तो ज़हरा का वफादार है, और जो फातिमा तो ज़हरा का वफादार है वो मदीने वाले आका का वफादार है, और जो मेरे आका का वफादार है उस पर खुदा को प्यार है, और जिस पर खुदा को प्यार है उसके लिए जन्नत की बहार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या हुसैन या हुसैन अल्लाह। हज़रात ये उमर फारूक आजम है। आपने कहा कि मैं शहरवानों का निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ नहीं करूंगा। अगर मैंने अब्दुल्ला के साथ निकाह करा दिया तो दुनिया कहेगी उमर इंसाफ करने वाला नहीं था, दुनिया कहेगी कि उमर ने इंसाफ से काम नहीं लिया, दुनिया कहेगी उमर ने ना इंसाफी की है शहरवानों के हक में, इसलिए मैं शहरवानों का निकाह इसी शख्सियत के साथ करूंगा। ये शहरवानों कौन थी? ईरान के बादशाह की बेटी थी, ईरान के बादशाह की, ईरान के शहंशाह की बेटी थी। गिरफ्तार करके लाया गया था इनको मदीने की सरजमीन पे। हजरात गिरामी इमाम हुसैन को बुला करके उमर फारूक आजम कहते हैं ए मेरे आका हुसैन आपका निकाह मैं शहरवानों के साथ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मंजूर फरमा लिया। हजरत शहरबानों से कहा मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह के ताल्लुक से उमर फारूक आजम ने कि ए बेटी ये मत समझना कि उमर इंसाफ करने वाला नहीं है, ये मत समझना उमर ने इंसाफ से काम नहीं लिया है, बल्कि दुनिया याद रखेगी उमर के अदल को, दुनिया याद रखेगी उमर के इंसाफ को। ए बेटी शहरबानो अगर तू एक शहंशाह की बेटी है तो हुसैन भी एक बादशाह का बेटा है। ए बेटी ये मत समझना कि तू ईरान के बादशाह की बेटी है, अरे तू तो ईरान के बादशाह की बेटी है, लेकिन मैं जिसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ वो उसका बेटा है जो जमीन का भी बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है, जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, जिसकी हुकूमत आसमान पे भी चलती है, अरे जिससे खुद अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, जिससे मदीने वाला आका मोहब्बत करता है। ए बेटी तेरा निकाह मैं इमाम हुसैन के साथ कर रहा हूँ, और जब से शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में आई थी
बीबी हो तो ऐसी हो, चौजा हो तो ऐसी हो। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था, ए मेरी प्यारी बीबी शहरबानो, तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया है। जब भी तेरे शौहर को कोई जरूरत पेश आई, तूने वक्त से पहले शौहर को अता करती, तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया है। मैं भी तुझसे राजी हूँ, मेरे नाना भी तुझसे राजी हैं, मेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी है। लेकिन आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है कि जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना, क्योंकि तू शौहर साबिर की बीबी है, तू साबिर घराने की बहू है, लिहाजा सब्र से काम लेना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे कैसा सब्र किया है बीबी शहरबानों ने, कैसे सब्र से काम लिया है शहरबानों ने। तारीख उठा करके देखो, ये बात तारीख की आज हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए थे, जुल्फिकार हैदरी को लेकर के मेरे आका हुसैन मैदान करबला में आने वाले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते, आप इजाजत दीजिए, आपका बेटा मैदान करबला में जाना चाहता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, मेरे लाल तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, मेरे लाल तुमसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, मेरे लाल तुमसे सैयदों की नस्ल चलेगी। मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना है, मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना है, मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी परेशानियों का सऊबतों का सामना करना है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सब्र की तलकीन करते हैं, बेटा हर मकाम पे सब्र करते रहना, बेटा हर मकाम पे सब्र से काम लेते रहना। अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के कहते हैं, मेरी बहन तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है, हर मकाम पे सब्र करती रही है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। जब तू अपने भाई के सर को तन से जुदा होते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन सब्र की तलकीन करके अपनी सवारी पे सवार होते हैं। हुसैन की सवारी का नाम जुलजनाह था। इमाम हुसैन जब सवारी पे सवार हुए, इरशाद फरमाया, चल मेरे गाजी अब मक्तल की तरफ चलते हैं, चल मेरी सवारी मक्तल की तरफ चलते हैं। मेरे आका हुसैन ने जब सवारी को एड़ लगाई तो इमाम हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे गाजी के यजीदियों की तलवारें देख करके डर गया है, ए मेरे जुलजनाह का यजीदियों की बर्छियां भाले देख करके डर गया है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो घोड़ा अपनी जबान में सर नीचे रख करके कहता है, मेरे आका मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था, कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है, मैं रात को सोती हूँ तो बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ, मुझे मेरे बाबा से जुदा करके मत ले जा। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना क्या बात है? कहा, बाबा तुम मैदान करबला में मत जाओ, तुम्हारे बाद हमें संभालने वाला कोई नहीं है। तुम वहां जा रहे हो जहां से भाई अली अकबर लौट करके नहीं आए, तुम वहां जा रहे हो जहां से भाई कासिम लौट करके नहीं आए, तुम वहां जा रहे हो जहां से चचा अब्बास पानी लेकर के आज तक लौट करके नहीं आए। मेरे बाबा तुम मैदान करबला में मत जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटी खेमे के अंदर जाओ, जाकर के सब्र से काम लो। बेटी हमें हमारा मुकद्दर बुला रहा है, बेटी हमें हमारी मंजिल बुला रही है, बेटी हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मेरे आका हुसैन मैदान करबला की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब मैदान करबला में पहुंचे, इरशाद फरमाया, जालिम यजीदियों, तुम्हें पता है मैं नबी का नवासा हूँ, तुम्हें पता है मैं नबी का लाडला हूँ, तुम्हें पता है मुझे नबी ने अपनी आगोश में खिलाया है, तुम्हें पता है मुझे नबी ने अपने दोस्त पे बिठाया है, तुम्हें पता है नबी ने मुझे चूमा और सूंघा है। हजरात गिरामी, शिमर ने कहा, हुसैन नसबनामा इसलिए बता रहे हो कि हमसे जंग न करनी पड़े, हुसैन क्या मौत से डर गए हो? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, जालिम मौत की धमकी देता है, मौत की धमकी देता है। अरे मौत की सख्ती कैसी? अरे मैली है पोशाक बदल डालूंगा, तू हमें डरा रहा है, तलवारें हमारे घर की गुलाम रही हैं, तू हमसे कह रहा है कि हुसैन मौत से डर गए हो। अरे तुझे पता नहीं है, मौत का फरिश्ता
فرشتہ ہمارے دروازے پہ آ کر کے اجازت لیتا ہے کہ اندر آ جاؤں کہ نہیں آ جاؤں، تو ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہے۔ میرے آقا حسین نے ذوالفقار حیدری کو میدان کربلا میں لہرایا تھا۔ حسین کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی، صاعقہ کی طرح گرج رہی تھی، اور گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی تھی۔ امام حسین میدان کربلا میں اپنی تلوار کو لہرا رہے ہیں، ظالم یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ میمنہ پہ حملہ کیا، آقا حسین نے میمنہ صاف کر دیا۔ میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ صاف کر دیا۔ کل لشکر کے قلب پہ حملہ کیا، لشکر کا قلب صاف کر دیا۔ پورے یزیدیوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ارے حسین کی تلوار کو روکا جائے، حسین کی تلوار کو کیسے روکا جائے؟ شمر کہہ رہا ہے کیسے روکوں، سنان کہہ رہا ہے کیسے روکوں، خولی کہہ رہا ہے کیسے روکوں، لیکن حسین کی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین کی تلوار چلتے چلتے رک گئی، لیکن نہ تو پانی کی وجہ سے رکی تھی، نہ تو پیاس کی وجہ سے رکی تھی، نہ تو زینب کے آنسو دیکھ کر رکی تھی۔ اگر حسین کی تلوار رکی تھی تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی تھی۔ حسین جاتے جاتے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں، حسین جاتے جاتے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، حسین جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، تم کھانا کھا کر نماز نہیں پڑھتے، تم پانی پی کر نماز نہیں پڑھتے، ارے دیکھ تیرا حسین بھوکا پیاسا بھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ میرے آقا حسین نے جب زخموں کی تاب نہ لا سکے، میرے آقا حسین کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں، میرے آقا حسین پہ نیزے برچھی اور بھالوں کا حملہ ہو رہا ہے، میرے آقا حسین سواری سے نیچے تشریف لانے والے تھے۔ سواری ہو تو ایسی، سواری بھی کیسی وفادار تھی، دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے تو گھوڑا نیچے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے تاکہ امام حسین نیچے تشریف لے آئے۔ میرے آقا حسین سواری سے نیچے تشریف لائے، میرے آقا حسین کے سینے پہ شمر نے پیر رکھ دیا۔ یہ وہ سینہ تھا جسے کبھی حضرت فاطمہ لگاتی تھی، جسے کبھی مولا علی لگاتے تھے، جسے کبھی میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ امام حسین نے اپنی طاقت کے زور پہ اس شمر کے پیر کو اپنے سینے سے ہٹا کر کے اپنے سر کو مدینے کی جانب کیا اور نانا کی بارگاہ میں عرض کی، نانا آپ کے نواسے نے جو آپ سے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کو کربلا میں پورا کر دیا ہے، اس وعدے کو کربلا میں نبھا دیا ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، بڑا اچھا بات۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شمر تھا سینے پہ تیغ تانے، حسین سجدے میں گر کے اے ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شمر تھا سینے پہ تیغ تانے، حسین سجدے میں گر کے بولے، زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، زمانے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ میرے آقا حسین کے سر مبارک کو سجدے میں جب آپ تشریف لے گئے تو شمر نے تن سے جدا کیا۔ اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میرے آقا حسین کو شہید کیا گیا، امام حسین کے سر مبارک کو یزیدیوں نے اپنے قبضے میں لیا، تو چاہتے تو میرے آقا حسین کے سر کو کسی
थैले में रख करके ले जाते, चाहते मेरे आका हुसैन के सर को किसी कपड़े में लपेट करके ले जाते, चाहते तो मेरे आका हुसैन के सर को किसी चादर में लपेट करके ले जाते, लेकिन ऐसा यजीदियों ने नहीं किया। मेरे आका हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके ले गए और सीन नेज़े पे जब बुलंद किया मेरे आका हुसैन के सर को, और जब करबला की धरती से चले ये जालिम यजीदी, तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शिमर तू क्या समझ रहा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने हुसैन की बादशाहत को खत्म कर दिया है? तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को कत्ल कर दिया तो कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा? तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो कोई हुसैन का जिक्र करने वाला नहीं होगा? अरे देख ले मेरे भाई की बादशाहत, देख ले मेरे भाई की हुकूमत, देख ले मेरे आका इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके यजीदी ले जा रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शिमर, अरे कल भी मेरे भाई की हुकूमत थी, आज भी मेरे भाई की हुकूमत है और कयामत तक मेरे भाई की हुकूमत रहेगी। कल भी मेरा भाई बादशाह था, आज भी मेरा भाई बादशाह है और कयामत तक मेरा भाई बादशाह रहेगा। कल भी मेरे भाई का जिक्र हो रहा था, आज भी मेरे भाई का जिक्र हो रहा है और कयामत तक मेरे भाई का जिक्र होता रहेगा। कल भी मेरा भाई ऊंचा था, आज भी मेरा भाई ऊंचा है और कयामत तक मेरा भाई ऊंचा रहेगा, क्योंकि मेरे भाई को ऊंचा किसी दुनियादार ने नहीं किया है बल्कि मदीने के ताजदार ने किया है। और जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। करबला में ये कहती थी ज़ैनब, मेरे भाई की है बादशाहते, मेरे भाई की है बादशाहत, सर कटा है मगर नो के नेज़ा, सर कटा है मगर नो के नेज़ा, देखो ऊंचा है नीचा नहीं है, सर कटा है मगर नो के नेज़ा, देखो ऊंचा है नीचा नहीं है, सर कटा है मगर नो के नेज़ा। मेरे आका हुसैन जिंदा है, मेरे आका का सर मुबारक मेरे आका हुसैन का जब कूफे के बाजार से गुजर रहा था, कूफे की गलियों से गुजर रहा था, तो मेरे आका हुसैन का सर कुरान की तिलावत करता हुआ जा रहा था। ये जालिम यजीदियों ने भी सुना था। सवार दोषे पैगंबर हुसैन जिंदा है, बता रहा है कटा सर हुसैन जिंदा है, और सरे हुसैन को नेज़े पे बोलता देखा, पुकार उठे सितमगर हुसैन जिंदा है, पुकार उठे सितमगर हुसैन जिंदा है। बता दिया है जमाने को मेरे ख्वाजा ने खुद अपने हाथ से लिखकर हुसैन जिंदा है। मेरे आका हुसैन जिंदा है, और ऐसे जिंदा जिसके नाम के साथ लग जाए उसमें भी जिंदगी आ जाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो बतकाज़ाए बशरियत या सबकत लिसानी की वजह से, तो परवरदिगार उसे माफ फरमाए। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला वालों की शान ये है कि धमकियां क्या दे, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। और ये एक शायर तो यूं कहता है कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है। देखिए हज़रात आप जाइए मत, क्योंकि अब मैं बगैर किसी तबहीद के मद्दाह रसूल नाम भाई फहीम अख्तर को आप हज़रात की समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। आप हज़रात यहीं पर बैठिए, शेर समात करें। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में भी यजीद की धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में भी हुसैन की धार बहुत है। और दूर से ही पहचानती है कौन है दुश्मने रसूल, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है, हैदर की जुल्फिकार, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता
ہے اور میں ہوں اصغر، ہوں علی کا پوتا. نام ہے میرا اصغر، میں ہوں علی کا پوتا. جو انگلیوں سے بابے خیبر کو نچا دیتا ہے، جو انگلیوں سے بابے خیبر کو نچا دیتا ہے، جو انگلیوں سے بابے خیبر کو نچا دیتا ہے. دیکھیے حضرات، پروردگار عالم نے بخار بعد میں پیدا کیا، پہلے اس کا علاج پیدا کر دیا. ایسے ہی وحدہ لا شریک نے ملیریا بعد میں پیدا کیا، پہلے اس کا علاج پیدا کر دیا. وحدہ لا شریک نے ڈینگو بعد میں پیدا کیا، پہلے اس کا علاج پیدا کر دیا. یوں ہی سمجھ لیجئے بریلی کا تاج الشریعہ پہلے پیدا ہوا، طاہر غیابی بعد میں پیدا ہوا، امام محمد رضا خان پہلے پیدا ہوا، اشرف علی تھانوی بعد میں پیدا ہوا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ کربلا کا امام حسین پہلے پیدا ہوا، یزید پلید بعد میں پیدا ہوا. تبھی تو